Good morning, children. This is Kamlesh Duhan, and let us continue the first chapter of civics, that is the Indian Constitution. Children, in this part of the chapter, we are going to do key features of Indian Constitution, and you would find the answer of the question that why does a country needs a constitution. Children, today most of the countries in the world have a constitution, while all democratic countries are likely to have a constitution. Means it is required for democratic countries that they should have the constitution, but it is not necessary that other countries which are not democratic countries, they should have the constitution. It is their wish, they can make their own constitution or not. And take example of Nepal. Previously, when the monarchy was there was a constitution, but the ideals which were given in that constitution were different. But when Nepal became democracy, after that these ideals were also changed by the people. Constitution was rewritten by the people. So what type of purposes constitution serves? It is first purpose that is served by the constitution, that it lays out certain ideals. Means all the ideal things, all the perfect things are included in the constitution, which are the basis of the country. Means what type of country people aspire to live in, यानी कि वो सभी चीज़ें बेस हैं कि लोग किस तरह के देश में रहना पसंद करते हैं, वो सभी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल हैं. सेकंड purpose is that constitution tells us what the fundamental nature of our society is. यानी कि हमारे देश की जो सोसाइटी है वो किस तरह की है, किस तरह के लोगों के बिलीव्स हैं, किस तरह के लोग वहाँ पे रहते हैं. You know very well that all the countries are diverse, means they have diversity. Different communities are living in all the countries. So in the same in our country also, तो सभी कॉमन चीज़ें दे रखी होती हैं, क्योंकि अगर कॉमन सबकी राय नहीं दे रखी हो कॉन्स्टिट्यूशन में, तो जो डाइवर्सिटी है, जो अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग हैं, वो उन पे अग्री अपोन नहीं करेंगे, अग्री अपोन में सहमत नहीं होंगे. तो सभी की सहमति से सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल की जाती हैं, सभी की कंसेंसस से. कंसेंसस का मतलब होता है अग्रीमेंट. एंड कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स सर्व अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स. यानी कि कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड होते हैं, जिसमें जो कि देश के सभी लोग उस जिस पे अग्री करते हों, और वो ही सभी आइडियल चीज़ें जो कि प्रिंसिपल्स रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे होते हैं, उसी के बेस पर कंट्री को गवर्न किया जाता है. गवर्नमेंट उन्हीं को फॉलो करती है. दिस और चीज़ें क्या इंक्लूडेड होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो ये हैं कि गवर्नमेंट को एग्रीमेंट के ऊपर चलना पड़ेगा, लोगों के एग्रीमेंट के ऊपर चलना पड़ेगा किस टाइप की गवर्नमेंट है, और उन सभी आइडियल्स को अपहोल्ड करके हुए आगे चलना पड़ेगा, उनको मानते हुए आगे चलना पड़ेगा, उनको साथ लेकर आगे चलना पड़ेगा. यानी कि आगे डेवलप करना पड़ेगा, देश में प्रोग्रेस लानी पड़ेगी. Now, here are some key features of Indian Constitution. First is federalism. Children, federalism is the form of government in which there are more than one level of the government, and all these levels of the government are working under one government, that is the state level government. Take example that in our country there are now 28 states. तो 28 स्टेट्स की गवर्नमेंट्स जो हैं वो सभी एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही हैं. हालांकि दे आर फ्री इन देयर ओन एरिया, दे कैन मेक देयर ओन डिसीजन ऑल्सो, बट दे आर वर्किंग अंडर अ federal government, that is the central level government. So this type of system where there are three tiers of the government, like there is local level government, that is panchayati raj, then state level government, and then central level government. So this type of system is known as federalism. Second feature of Indian constitution is that there is parliamentary form of the government in our country.
means people elect their representative and these representatives form the parliament. They become the members of parliament and they are known as MPs also. So different not only at the central level government, at the local level government also, all the representatives are elected by the people and they are elected by using their right to vote, which is also known as universal adult franchise. और इसका मतलब ये होता है कि लोगों का डायरेक्ट रोल है गवर्नमेंट को बनाने में, लोगों को किसी दूसरे का साथ मतलब मीडिएटर का सहारा नहीं लेना पड़ता, वो डायरेक्टली अपना वोट कास्ट करते हैं एंड दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स और दे देमसेल्व्स आल्सो कैन कंटेस्ट द इलेक्शन। कोई भी उनके साथ उनके फैमिली बैकग्राउंड के बेस पर या रिलीजन के बेस पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, वो भी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं इफ़ दे आर क्वालिफाइड। और थर्ड फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी कि हमारे देश की हर गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। जो पिछले मैंने फेडरलिज्म में पढ़ा था वो तो 3 टियर्स थे, 3 लेवल्स थे। अब हर एक लेवल की गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। और व्हाट आर दैट? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का क्या काम होता है? वो लॉज, इट मेक्स द लॉज एंड द एग्जीक्यूटिव उन्हीं लॉज को इम्प्लीमेंट करती है, लोगों के लिए प्रैक्टिकली उनको यूज़ करती है। और जुडिशरी सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इज़ नोन एज जुडिशरी। जुडिशरी अगर इन लॉज का वायलेशन होता है तो उन लोगों को उससे बचाती है, उन लोगों को प्रोटेक्ट करती है। तो लेजिस्लेचर में क्या शामिल होता है, कौन से लोग शामिल होते हैं? ऑल द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। और एग्जीक्यूटिव में स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि सारे मिनिस्टर्स हैं, हु आर मिनिस्टर्स। और इन जो हम लोगों ने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे थे उन्हीं में से कुछ एक को मिनिस्ट्रीज़ प्रोवाइड की जाती हैं और वो मिनिस्टर्स बन जाते हैं, जैसे कि एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर और रोडवेज मिनिस्टर। दीज ऑल आर नोन एज एग्जीक्यूटिव, क्योंकि उन्हीं को तो इम्प्लीमेंट करना होता है सभी कानूनों को। और ये तीनों ऑर्गन क्यों बनाए गए हैं गवर्नमेंट के? ताकि हर एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन पे अपनी नज़र रख सके। सो वन ऑर्गन कीप्स एन आई ऑन द अदर ऑर्गन एंड प्रोटेक्ट्स दैट देयर वुड बी नो मिसयूज ऑफ पावर, यानी कि एक ऑर्गन अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकता क्योंकि उसके ऊपर दूसरे ऑर्गन की भी नज़र है। और कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हर एक जो ऑर्गन्स हैं हमारे देश के, उनकी अपनी अपनी अलग अलग पावर हैं। दे शुड एक्सरसाइज देयर डिफरेंट पावर्स। थ्रू दिस ईच ऑर्गन एक्ट्स एज ए चेक, यानी कि वन ऑर्गन कैन कीप ए चेक ऑन द other organ of the government so that balance would be there in the power of all 3 governments. Now next is fundamental rights. Children, the section of the fundamental rights also has been given in our constitution, and where in the part of the constitution where fundamental rights are given, that a part of the constitution is known as soul of Indian constitution. soul का मतलब होता है आत्मा, कॉन्शियंस का मतलब होता है सोल का मतलब होता है आत्मा। यानी कि भारत में जो हमारे देश के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का दिल कहा गया है, आत्मा कहा गया है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज दीज राइट्स टू ऑल इंडिविजुअल्स, और चाहे वो स्टेट है चाहे कोई इंडिविजुअल है, वो इन राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता। उन सभी को इन राइट्स को लेकर ही लोगों के राइट्स को उन्हें प्रोवाइड करना पड़ेगा। और कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं? देयर आर फर्स्ट लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फर्स्ट इज राइट टू इक्वालिटी। Children, all people in India are equal before the law. There is no discrimination with people on the basis of their color, their caste, their religion or sex. Every person has access to all the public places. They can go anywhere, in hotels, in playgrounds, they can go to the market also, and in the matters of employment also. Means when job is to be provided, government cannot discriminate any citizen of a country. And one more thing that has been prohibited by the right to equality, that is untouchability. According to the article 17 of our constitution, untouchability has been abolished
from our country. Next right is right to freedom, and this right includes that every citizen has right to has freedom of speech and express. We can express ourselves. हम अपनी बात आगे रख सकते हैं सबके सामने, हम स्पीच दे सकते हैं, कहीं पे भी जाकर हम अपने एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं. वी कैन मूव एनी वेयर इन द कंट्री, वी कैन रिजाइड ऑल्सो इन एनी वेयर इन द कंट्री. एंड नेक्स्ट राइट इज़ राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, मीन्स हमारा कोई भी एक्सप्लोइटेशन नहीं कर सकता. जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बैन है हमारे देश के अंदर. फोर्स लेबर यानी कि फोर्सफुली किसी को लेबर नहीं बनाया जा सकता, यानी कि मजदूरी नहीं करवाई जा सकती किसी से. और 14 ईयर्स की एज के बच्चे हैं, उससे नीचे के बच्चे हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट यानी कि उनको किसी भी काम धंधे में नहीं लगाया जा सकता. नेक्स्ट राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि हमें रिलीजन, किसी भी रिलीजन को फॉलो करने की फ्रीडम है, और हम कोई भी रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हैं, प्रोपगेट कर सकते हैं, मीन्स उसका प्रचार कर सकते हैं कहीं पे भी. हमारे चॉइस का कोई भी रिलीजन है उसको. नेक्स्ट राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट. चिल्ड्रन, हमारे देश में बहुत सारी माइनॉरिटीज़ रहती हैं जो कि रिलीजियस माइनॉरिटीज़ भी हैं, और लिंग्विस्टिक राइट यानी कि लैंग्वेज के बेस पर भी माइनर ग्रुप्स हैं जो कम संख्या में लोग रहते हैं रिलीजन के नाम पे, तो उनको अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सेटअप करने का भी राइट है, और ये किसके अंडर है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट. लास्ट राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़. और हमें हमारे देश में अगर कोई भी सिटीज़न, इफ़ द सिटीज़न फील्स दैट देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, उनके जो फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे पांचों राइट्स दे रखे हैं, अगर उनका वायलेशन होता है तो वी कैन नॉक द डोर ऑफ द कोर्ट, वी कैन मूव टू द कोर्ट्स. एंड लास्ट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज सेक्युलरिज्म. एंड सेक्युलरिज्म क्या होता है? सेक्युलरिज्म मीन्स कोई भी गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन को प्रेफरेंस नहीं देगी, यानी कि नो रिलीजन वुड बी ऑफिशियली प्रोमोटेड बाय द स्टेट. स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट, तो नेशन भी होता है इसका मतलब, यानी कि नेशन के अंदर, देश के अंदर किसी भी रिलीजन को प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी. ऑल रिलीजन वुड बी ट्रीटेड इक्वली. और ये जो सेक्युलरिज्म वाला वर्ड है, हमारे देश की जो प्रियम्बल में शामिल किया गया था, वो 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था. 42nd अमेंडमेंट का मतलब होता है हमारे देश में के कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार हुआ था, और उसके बाद इसको सेक्युलर नेशन हमारे देश को घोषित किया गया था. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन. नाउ आई वाइंड अप चैप्टर. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. थैंक यू वेरी मच.